Hello students, today our topic is compound interest. We will start now chapter 3rd and this is chapter by using the formula. So compound interest find out करना है by using this formula. A is equals to P into 1 plus R by 100 raised to power N. Here A is amount, P is principal and R means rate of interest and N means नंबर ऑफ ईयर्स. अगर असी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कंपाउंडेड ईयरली दैन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होएगी वो पर ईयर के अकॉर्डिंग होएगी एंड जो एन होएगा दैट इज़ आल्सो अ नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट इफ ₹15,000 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years and the rates for the successive years are 8% per annum and 10% per annum respectively. Okay, so this means sun principal कितना given है 15,000 and time कितना साढ़े कोल 2 years and rate of interest टाइम 2 year है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट ईयर ਲਈ 8% है एंड सैकेंड ईयर ਲਈ 10% है. ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਫॉर n ਈਅਰਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਈਅਰਸ ਹੈ ਬਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੋਨੋਂ ਈਅਰਸ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A amount is equals to principal is 15,000. So first 1 plus R rate of interest for first year that is 8 by 100 raised to power 1 होएगी because this is for first year. So only first year लिया तो time इत्थे की होएगा 1 year and then same factor for second year 1 plus second year ਲਈ जो rate of interest है वो साढ़े कोल की होएगी 10 डिवाइड बाय 100 रेस टू पावर 1 होएगी बिकॉज ये भी साढ़े को की है 1 ईयर ਲਈ है सैकेंड ईयर ਲਈ. ओके, तो देखो हुण असीं सिंपली इस तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर साढ़े को रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होएगी दिस मीन दोनों फैक्टर सेम होंगे तो दोनों फैक्टर सेम होंगे दिस मीनस असीं एक फैक्टर नाल ही उहनूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी पावर 2 नाल. ओके, तो बट हुण की है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट तो सानूं डिफरेंट फैक्टर्स लैने पे. then now calculate this 0 नाल एक 0 कट हो जाएगी so that is equals to 15,000 into LCM लो इसका कितना आएगा 100 plus 8 108 by 100 into इतने साढ़े को बचेगा 10 into 1 10 plus 1 11 by 10. ठीक है, now 2 zeros नाल 2 zeros कट हो जाएंगे इस 0 नाल 0 कट हो जाएगी. now we left with 15 into 108 into 11. So multiply these all that is equals to rupees 17820. So now this is the amount for this. Okay, I hope थोनों समझ आ गया होना. बहुत easy question है. Then next question is what sum of money will amount to rupees this in 2 years at 10% per annum compound interest. So compound interest find out करना है असी प्रिंसीपल फाइंड आउट करना है एट वट सम. तो जो प्रिंसीपल असी फाइंड आउट करना है उसमें असी सपोज कर लेंगे x. ओके, तो सपोज प्रिंसीपल इज x. सो नाउ the money will amount to rupees this ये सानू की गिवन है अमाउंट इन टाइम कितना साढ़े को 2 years and rate of interest is 10%. okay, so now amount is equals to principal into 1 plus R by 100 raised to power n. so here amount is 5445 that is equals to principal value जो है फाइंड आउट करनी है suppose this is x एंड सिंपली तुसीं इहनूं पी नाल भी सॉल्व कर सकते हो. 1 प्लस आर मीनस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइड बाय 100 एंड n here n is 2. So
5445 इज इक्वल्स टू एक्स, ये 0 नाल 0 कट हो जाएगी, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 + 1/10 रेज़ टू पावर 2. नाउ दिस इज सेम एज एंड एलसीएम लवांगे तो साढ़े कोल की आएगा 10 + 1 दैट मीनस 11/10 रेज़ टू पावर 2. सो 5445 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ਹੁਣ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 121/100. ਸੋ एक्स ਦੀ ਵੈल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसनों असी सैकेंड साइड से लेके जावांगे तो की होएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 121 दैट इज इक्वल्स टू एक्स. सो बाय कटिंग दिस एंड 11 के टेबल से कट हो जाएगा फर्स्टली 11 एंड दिस इज 495 and again at table of 9 this is 1 and this is 4 5. So now x is equals to this 4 5 means 45 into 100. So x is equals to 4500. So this means principal is 4500. Okay, clear? So next question is, at what rate % per annum will rupees 6000 amount to rupees this in 2 years when interest is compounded annually? इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअली काउंट करना सी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इत्थे फाइंड आउट करांगे. सो हेयर प्रिंसीपल इज 6000 एंड अमाउंट इज 6615 and time is means n here 2 years. ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होएगा आर होएगा वो असी फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाइज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r डिवाइड बाई 100 रेज़ टू पावर n. सो अमाउंट की होएगी 6615 दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 6000 इंटू 1 + r फाइंड आउट करना है same as, and from this n is 2 तो इतों साढ़े कोल की आएगा सिंपली r की वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट करनी है. सो दिस मीनस जो a वाला फैक्टर है उसमें असी कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन इस तो अगे सॉल्व नहीं होएगा. सो ओनली दिस थिंग कैन बी सॉल्व. सो दिस मीनस असी की करांगे इसनों डिवाइड करांगे बाय 6000 नाल. So this factor is equals to 1 + r by 100 raised to power 2. So that is equals to 6615 and divide by this 6000. Okay, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. then this is 1 3 2 3 and this is 1 2 1200. so 1 + r by 100 raised to power 2 is equals to 1323 divided by 12. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ something is common and that is 3. ਤਾਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. this is 400 and now this is 441. So that is equals to 441 by 400. So this is 1 + r by 100 raised to power 2 and this is equals to, this can be written as 21/20 the whole square. ठीक है. सो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 2 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ
सॉल्व करना उत्थों तक सॉल्व करांगे जदों तक ये साडे कोल किसी नंबर का स्केयर नहीं बनेगा। सो पहला असीं जो भी कटिंग हो रही सी कटिंग की, उस तो बाद साडे कोल ये नंबर बचे। हुण जो ये नंबर है ये इस नंबर का स्केयर बन रहा है, ठीक है। तो मेन टारगेट साडा इत्थों तक पहुँचना सी। उस तो बाद हुण नैक्सट स्टैप साडा की होएगा, 2 पावर नाल 2 पावर ये कैंसल आउट हो जाएगी। सो साडे कोल की बचेगा 1 + r/100 इक्वल्स टू 21/20। नाउ 1 जो है राइट साइड चला जाएगा, तो r/100 इज इक्वल्स टू 21/20 माइनस 1। नाउ टेक एलसीएम, तो r/100 इज इक्वल्स टू 20 एलसीएम लावांगे तो साडे कोल की आ जाएगा 20 नाल मल्टीप्लाई 21 माइनस 20, दिस मीन्स 1 डिवाइड बाय 20। सो r की वैल्यू साडे कोल की आ जाएगी 1/20, जो 100 है इधर जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो दिस इज 5। सो दिस इम्प्लाइज r की आ जाएगा साडे कोले 5%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ओके जी, क्लियर है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in how many years will ₹7,000 amount to ₹9,317 at 10% per annum compound interest? In how many years? इत्थे साडे कोल की असी टाइम फाइंड आउट करना है। तो जो प्रिंसीपल है दैट इज 7,000 and amount is 9,317 rupees and rate of interest r is 10%। जो टाइम है मीनस n है नंबर ऑफ ईयर्स उसे फाइंड आउट करना। सो ये सेम फॉर्मूला होएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल इंटू 1 + r/100 रेज़ टू पावर n। सो नाउ अमाउंट इज 9,317 दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल विच इज 7,000, 1 + r is 10 raised to power n, सेम एज बिकॉज n असी फाइंड आउट करना है। तो सेम इस दे विच होएगा जो असी पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस n की वैल्यू जदों तक सानू पता नहीं होगी उदों तक असी की करांगे, इस फैक्टर नू ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। सो इस दे विच भी सेम ही कंसैप्ट होएगा, 7,000 नाल असी डिवाइड करांगे। तो 9,317 डिवाइड बाय 7,000 दैट इज इक्वल्स टू, ये फैक्टर इस फैक्टर में असीं अंदर इन्ना कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 नाल 0 कट हो जाएगी। तो 10 + 1 इज 11/10 रेज़ टू पावर n। हुण तुहानूं क्लीयर ही होएगा पिछले क्वेश्चन तो कि ये साडे कोल जो बन रहा है 11/10 की पावर 1 है। दिस मीनस ये भी साडे कोल की बनना चाहिए 11/10 की पावर ही बनेगा। ओके, तो इसनूं जो कॉमन टेबल है उससे पहला कटिंग करो, कटिंग करने तो बाद साडे कोल 11/10 की पावर ही जरूर बनेगा। अगर मैं नीचे तो देखा तो साडे कोल की आएगा 7 तो अगर मैं इसनूं डिवाइड करदा तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 ईजीली असी 10 की पावर च कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं 7 के टेबल से इसनूं कट करा तो 1000 एंड सेम एज 7 के टेबल से साडे कोल कट करके की आ जाएगा 1331। So this is 1331 by 10,000 that is equals to 11/10 raised to power n। सो हुण असी इसमें एक्सप्रैस कर सकते हैं 11/10, दिस इज 11 क्यूब, दिस इज 10 क्यूब, सो होल पावर इज 3, सो दैट इज इक्वल्स टू 11/10 रेज़ टू पावर n। सो हुण बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो दिस मीनस की होना चाहिए पावर्स सेम होनी चाहिए। सो दिस मीनस n इज इक्वल्स टू 3। सो टाइम साडे कोल कितना आ गया 3 ईयर्स। ओके, then next question is, divide ₹28,730 between A and B so that when their shares are lent out at 10% compound interest compounded per yearly, the amount that A receives in 3 years is the same as B receives in 5 years। मीनस असी की करना है, जो ये टोटल अमाउंट है असी इस पूरी अमाउंट नू 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर देना है।
एक पार्ट इसका असी ए नूं दे देवांगे एंड जो दूसरा पार्ट इसका बचेगा वो पार्ट किहदे कोल आएगा बी कोल। ओके, तो इस दे विचों असीं सपोज कर लिया कि जो पार्ट असी ए नूं दे रहे हैं तो वो साडे कोल की होएगा एक्स। तो जो इस दे विचों ए नूं पार्ट देवांगे दैट इज़ एक्स एंड जो पार्ट इस दे विचों बी नूं दिता वो बाकी कितना रह जाएगा 28,730 माइनस एक्स। ये अमाउंट बी को रह जाएगी। तो असी इस टोटल नूं की कीता दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करता। हुण नैक्सट की है इसका जो शेयर है वो इन्होंने किया कंपाउंड इंटरस्ट से दिता। ठीक है, कंपाउंड इंटरस्ट 10% पर ईयर दे नाल। उस तो बाद रेट ऑफ इंटरस्ट दोनों ਲਈ की होएगा सेम होएगा आर इज़ 10%, दोनों ਲਈ सेम। एंड नैक्सट दैट द अमाउंट दैट ए रिसीव्स इन 3 ईयरस, टाइम ए दे ਲਈ कितना होएगा 3 ईयर होएगा। 3 ईयर दे विच इज़ सेम एज बी रिसीव्स इन 5 ईयर। तो इधर कितना होएगा टाइम 5 ईयर। समझ आ रही है? जो साडे कोल ए टोटल रुपये सी उस दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करते, ए नूं एक्स दिता तो बाकी जो एक्स इस दे विचों माइनस करके जो आएगा वो बाकी बी कोल जाणगे। एंड इस तो बाद इन्हां दोनों ने इस जो अमाउंट इन्हां नूं मिली सी उन्होंने कंपाउंड इंटरस्ट ते दिता एट 10% रेट ऑफ इंटरस्ट ते। उस तो बाद की होएगा जो अमाउंट ए नूं मिलेगी इन 3 ईयर्स दे विच वो किहदे इक्वल होएगी जो बी नूं इस सम ते अमाउंट मिलेगी इन 5 ईयर्स दे विच। तो दोनों अमाउंट इक्वल होणगियां। ठीक है, क्लीयर है? तो इस ते असीं ये फाइंड आउट करना है कि ए दा शेयर इहदे विच कितना होएगा एंड बी दा जो ये शेयर है कितना होएगा। मीनस असीं फर्स्टली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, दैन हुण असीं इहनूं सॉल्व करांगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए दे लई जो इंटरस्ट होएगा अमाउंट फॉर ए इन 3 ईयर्स इज़ इक्वल्स टू अमाउंट फॉर बी इन 5 ईयर्स। ओके, ये सानू गिवन है। तो ए दे लई जो अमाउंट होएगी 3 ईयर दे विच वो कितनी होएगी। ए लई प्रिंसीपल है एक्स 1 प्लस रेट ऑफ इंटरस्ट 10 डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर टाइम साडे कोल 3 ईयर्स, सो रेज टू पावर 3। सो दैट इज़ इक्वल्स टू बी लई जो अमाउंट होएगी, बी लई जो प्रिंसीपल है दैट इज़ 28,730 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रेट सेम है दोनों ਲਈ 10 बाय 100 रेज टू पावर टाइम कितना साडे कोल 5। ओके, सो इत्थे साडे कोल कितनी पावर है इसकी 3 और इत्थे साडे कोल कितनी पावर है 5। सो 3 पावर नाल असीं इहनूं डिवाइड कर देंगे। सो इस फैक्टर की जो 3 पावर नाल असीं इहनूं डिवाइड करांगे तो साडे कोल की आएगा, इतों ये 3 पावर कैंसल हो जाएगी। सो दिस इज़ ओनली एक्स इज़ इक्वल्स टू 28730 माइनस एक्स एंड इतों साडे कोल 3 पावर कैंसल हो जाएगी बट 5 पावर है तो की बचेगा साडे कोल इसकी 2 पावर। ठीक है, 0 नाल 0 भी असीं कैंसल कर देंगे तो ओनली 1/10 रेज टू पावर कितनी बचेगी साडे कोल 2। इनू एलसीएम लैके सॉल्व करो तो एक्स इज़ इक्वल्स टू 28730 माइनस एक्स तो कितना आ जाएगा 11/10 रेज टू पावर 2। सो एक्स इज़ इक्वल्स टू इज़ स्क्वायर कर दो, दिस इज़ 121/100 इंटू दिस फैक्टर 28730 माइनस एक्स तो 100 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 100x इज़ इक्वल्स टू 121 फर्स्ट मल्टीप्लाई विद दिस 28730 माइनस 121 एक्स नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो 121x। हुण असीं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसनूं लैफ्ट हैंड साइड से ले जाएंगे। सो दिस इज़ 100x प्लस 121x इज़ इक्वल्स टू इसनूं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल असीं एज इट इज़ ही रखांगे। सो नाउ एड बोथ 100 प्लस 121 221x that is equals to 121 into 28730.
So now x is equals to divide by 221. So 121 into 28730 और डिवाइड बाय 221. सो 221 जो है दैट इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 13 एंड 17. सो इस दे नाल तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होएगा बिकॉज दिस इज़ 11 स्क्वेयर. सो इनू डायरेक्टली असी इस दे नाल डिवाइड करांगे तो दिस इज़ 1 एंड नाउ दिस बिकम्स 130. So now x is equals to 121 into this 130. So that is equals to 15,730. So x is this. So this means x की सी साढ़े कोल x ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ a ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. x जो पार्ट सी वो a ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ. So a's share is equals to 15,730. एंड नाउ बी शेयर कितना होएगा इस दे विच. बी का जो शेयर है दैट इज़ 28,730 माइनस एक्स मीनस एक्स की वैल्यू माइनस कर दो 15,730. सो नाउ दिस इज़ इक्वल्स टू 13,000. ओके सो दिस इज़ बी शेयर. सो आई होप ये तुहानू सारा समझ लग गया होना. दैन अगर मेरी वीडियो तुहानू पसंद आई तो then like the video and subscribe my channel. Thank you.